સ્ક્રીન યલો આવે છે. હા હા. સ્ક્રીન લાઈન યલો. સ્ક્રીન યલો આવે છે પ્રશાંતભાઈ. એક મિનિટ લેફ્ટ. Yes, good morning. Good morning. Good morning, Gathani bhai. ગુડ મોર્નિંગ મેડમ.
મેડમ જગ્યાએ પૂછવાનું. આજે મેડમ ઓપનિંગ સ્પીચ ને વેલકમ સ્પીચ કોણ આપશે? આજે છે ને ઓપનિંગ સ્પીચ હમણાં જો હેપ્સીબા મેડમ જોઈન થયા હશે ને, હેપ્સીબા. ના, નથી જોયું. હા, હજી આપણી પાસે 2 મિનિટ છે. ઓકે. જોઈન થયા હશે તો મેડમ આપશે, અને પછી સુધા શર્મા મેડમ. પણ નહીં હોય ને, હું જોઈ લઈશ. હજુ છે આપણી પાસે. નહીં હોય તો પછી હું ને બિનલ મેડમ. ઓકે. અનિતાબેન તો છે જ. આજે આપણો 8મો દિવસ થયો, બરાબર? યા. સરસ. જો બિનલ મેડમ બી આવી ગયા. હા, જો મેડમ જોઈન થઈ ગયા, ડોક્ટર હેપ્સીબા મેડમ. ગાંઠાણીભાઈ. યા. હા, ડોક્ટર હેપ્સી લખેલું છે ને, હા. Yeah, yeah. એ મેડમ છે. હા, મેડમ તમારો કેમેરો ક્લિયર કરો. ડોક્ટર હેપ્સીબા મેડમ. Yeah, yeah. I'm that. ગ્રેટ. હા, કેમ છો? ગુડ મોર્નિંગ અમીબેન. Good ગુડ morning. મોર્નિંગ. ગુડ મોર્નિંગ. યા ગાठाणीભાई गुड मॉर्निंग. ગુડ મોર્નિંગ. Good morning, madam. गुड मॉर्निंग एफसी मैम, कैसे हैं आप? Good morning, Binal. Good morning, Amit. ગુડ મોર્નિંગ મેમ. 3 મિનિટ લેફ્ટ. યસ સર. હવે सुधा मैडम has joined. નોટ યટ. Okay, so I'll just give her a phone call. હા હા સ્ટાર્ટિંગમાં બેનર આવશે. હા. આ બેનર પછી વેલકમ સ્પીચ તરીકે ડોક્ટર હેફીઝા મેડમ આપશે. अमीबेन, can you explain Hepzibah ma'am in Hindi or English? યસ. अच्छा गाठाणीભાઈ हिंदी में ગાંઠાણીભાઈ હિન્દી હિન્દી. ओके English, ओके English. ओके मैडम सबसे पहले Yeah, yeah. I cannot speak fluently in Hindi. नहीं Can नहीं you मैडम, इंग्लिश इंग्लिश, आप इंग्लिश में बोलना. ડોક્ટર અમે મેડમ એમને વાત કરી છે ને. हाँ, first madam, the when we will be live, the banner will come and the music will start. When the banner will go, immediately you have to start. Yes. Okay, and then we will invite Sudha ma'am. રુષિતા મેડમ ઓડિયો ટેસ્ટ કરાવો. Yes. ઓડિયો સ્ટાર્ટ કરો. Yes. રુષિતા મેડમ મારો અવાજ સંભળાય છે તમને? હા સર, આવે છે અવાજ. ઓકે ઓકે, ઓડિયો ટેસ્ટ થઈ જશે. હવે આપણે લાઈવ થવા જઈ રહ્યા છીએ. Good morning, everyone. Good morning, Dashani Bhai. Good morning, Dr. Anita. ગુડ મોર્નિંગ. Good morning, FC. હવે લાઈવ થવા જઈ રહ્યા છીએ એટલે મ્યુટ રાખશો પ્લીઝ. Morning, Anita ma'am. Yeah, good morning, Shubha.
हेलो हाय अमी गुड मॉर्निंग हेप्सी गुड मॉर्निंग ગુડ મોર્નિંગ. મેડમ આપણે લાઈવ થવા જઈ રહ્યા છીએ એટલે 2 મિનિટ માઇક બંધ રાખશો પ્લીઝ. Yes. વેઇટ, હજી નથી થયું. I've conveyed to Sudha ma'am. Yeah, we can begin. Can we start? હા. સ્ટાર્ટ. Good morning to one and all. We have completed 7 days of Indian Menopause series yoga. Today we are going to have yet another interesting and more useful yoga session by Mishra ji and Rashida. As we all know, yoga is little different from exercise. It gives a holistic approach to the health, the physical, the mental, and the um, spiritual well-being. And today we are going to have yet another interesting session by Mishra ji and Rishita, and they are very very interesting to listen and to witness it, because they are making it very simple. We are able to understand, and we are able to do it. So let's start with the program. Move on to the program. Thank you. Yeah. Thank you, Dr. Hepzibah ma'am. Thank you for coordinating with the South Zone societies. Thank you. Yeah. And आज हम करने वाले हैं IMS योग शिविर में सूर्य नमस्कार, that is sun salutations. सूर्य नमस्कार है, ये मैं बता सकती हूँ कि मतलब सभी तरह से सारे तरह प्रकार के स्ट्रेचेस इसमें आपको मिलते हैं, और एक ही ये ऐसी मतलब क्रिया भी बोल सकते हैं, योगाभ्यास भी बोल सकते हैं कि जिसमें आपको शरीर के सब प्रकार के स्ट्रेचेस मिल जाते हैं. तो अगर आप इसको रोज सूर्य के उठते ही करें, सूर्य के साथ पूर्व दिशा में होके सूर्य नमस्कार का रोज अभ्यास किया जाए तो शरीर के सब प्रकार के स्ट्रेचेस आपको मिल जाए. तो अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर सुधा मैडम, जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी के. सुधा मैम, फॉर द वेलकम एड्रेस प्लीज. अमी जी, आई थिंक सुधा मैडम अभी थोड़ी देर में जुड़ पाएंगी, जम्मू से शायद कनेक्टिविटी इश्यू है. तो रुशिता जी, हम आपका स्वागत करते हैं. आप हमें इतने दिन से बहुत सुंदर योग डेमोन्स्ट्रेशन बता रही हैं.
और हम यही चाहते हैं कि लोग योग अभ्यास को इसको रोज के कार्य में इस तरह से जुड़े कि योग को जीवन शैली की तरह अपनाएं, ना कि एक व्यायाम। तो रुशिता जी, ओवर टू यू फॉर द सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेशन एंड सैल्यूटेशंस। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हरिओम सभी को। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सब लोग अपनी मैट पर जगह पर बैठ जाएं। जो लोग सूर्य नमस्कार, या तो आपको नी पेन है, बैक पेन है, लास्ट ईयर में आपने कोई सर्जरी की हुई है, तो वो लोग खड़े होकर जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग के साथ सूर्य नमस्कार करने वाले हैं वो लोग नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग उसके साथ चेयर लेके भी बैठ जाए। तो जो लोग ये सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते उन लोगों को चेयर पे सूर्य नमस्कार करने हैं। बाकी सब लोग अपनी जगह पर बैठ जाइए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। आपका पूरा ध्यान आपकी ब्रीदिंग पर। हर एक अंदर आती हुई सांस और बाहर निकलती हुई प्रश्वास को महसूस करें। अपने शरीर को, अपने मन को इस योग सत्र के लिए, सेशन के लिए तैयार होने दे। शरीर को, मन को रिलैक्स इस सत्र के लिए संपूर्ण तैयार होने दे। एक बार प्रणव ओम का उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरे। सहनाववतु प्रार्थना। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें। प्राप्त हुई ऊर्जा को आंखों पर, चेहरे पर धीरे से हथेली में देखते हुए स्माइल के साथ आंखों को खोलेंगे। दोनों हाथों को सीधा करें। कोशिश करें कि सपोर्ट के बिना जगह पर खड़े हो जाए। सूर्य नमस्कार करते पहले, सूर्य नमस्कार एक ऐसी प्रैक्टिस है जो पूरे शरीर के साथ जुड़ी हुई है। 12 स्टेप्स के सूर्य नमस्कार है, उसमें पूरे शरीर को इन्वॉल्व किया जाएगा। तो उसके पहले हम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, सूक्ष्म व्यायाम, जॉइंट मूवमेंट्स जिसे बोलते हैं वो कर लेते हैं, ताकि किसी को कोई स्ट्रेच ना आए, कोई मसल्स खींचे ना, या तो वो बाद में पेन ना हो, उसके लिए हम बॉडी को प्रिपेयर कर लेते हैं। गर्दन से शुरुआत करेंगे। गर्दन को अप एंड डाउन, सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन को डाउन, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। मिडल में शोल्डर टू शोल्डर सांस भरे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड शोल्डर तक ले जाने की कोशिश करें। मिडल, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, मिडल, राइट साइड, मिडल, लेफ्ट साइड और धीरे से मिडल।
गर्दन को रोटेट करना है। गर्दन को नीचे की ओर ले आइए। सांस लेते हुए राइट साइड से गर्दन को ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से गर्दन को नीचे ले आएंगे। सेकेंड टाइम धीरे धीरे करेंगे, शोल्डर को रिलैक्स रखते हुए। लास्ट टाइम सांस लेते हुए गर्दन राइट साइड से ऊपर, लेफ्ट साइड से सांस छोड़ते हुए नीचे। एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड से सांस लेते हुए ऊपर, राइट साइड से सांस छोड़ते हुए नीचे। 2, शोल्डर को रिलैक्स रखेंगे। आंखों को हो सके तो खुली ही रखेंगे। हाँ, लास्ट 3। रिलैक्स। ताड़ासन, दोनों पैर जॉइंट। किसी को ऐसा लगे कि बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस बना सकते हैं। दोनों हाथ आगे सीधे। दोनों हाथों की फिंगर्स को लॉक करवाइए, हथेलियां बाहर की ओर। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए। हाथ और अपर बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। सांस लेते हुए हिल्स को ऊपर उठाना है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। सांस लेते हुए ऊपर, हिल्स को ऊपर उठाना है। पूरे अपर बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। हाथ हमारे ऊपर ही रहेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। लास्ट टाइम सांस लेते हुए ऊपर। 5 सेकेंड होल्ड, ब्रीदिंग नॉर्मल। नजर को एक जगह पर स्थिर रखनी है और धीरे से डाउन। हाथों को ऊपर ही रखेंगे, दोनों पैरों के बीच शोल्डर लेवल तक का डिस्टेंस बना ले। तिर्यक ताड़ासन, सांस भरे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट साइड। सांस लेते हुए मिडल। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। मिडल। लास्ट टाइम राइट साइड। मिडल। लेफ्ट साइड। और धीरे से मिडल। दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करें, सांस भरे। सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे, हथेलियां अंदर की ओर। और धीरे धीरे हाथों को रिलीज करें। रिलैक्स। दोनों हाथ कमर पर। अपर बॉडी ट्विस्टिंग, सांस भरे। सांस छोड़ते हुए सिर्फ कमर को पीछे की ओर ट्विस्ट करना है। राइट साइड। मिडल। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। पैरों को ट्विस्ट नहीं करना है, पंजे नहीं हिलेंगे। मिडल। लास्ट टाइम राइट साइड। सिर्फ लोअर बैक से कमर को ट्विस्ट करना है। धीरे से मिडल। लेफ्ट साइड। शोल्डर रिलैक्स रखेंगे और धीरे से मिडल। रिलैक्स। दोनों हाथों को कमर से पीछे लेना है। अंगूठे से अंगूठा टच करवाना है, शोल्डर को पूरा बाहर की ओर। दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस। सांस लेते हुए पूरा अपर बॉडी पीछे की ओर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर। पहले गर्दन को ऊपर रखेंगे, लोअर बैक से धीरे धीरे सिर्फ 90 डिग्री तक ले जाना है। हमारी पीठ सीधी रहेगी, गर्दन ऊपर रहेगी, बॉडी पीछे नहीं रहेगा, बॉडी का वेट पूरा आगे की ओर रहेगा। धीरे से मिडल में। सेकेंड टाइम बैकवर्ड बेंडिंग, सांस लेते हुए पूरा अपर बॉडी पीछे की ओर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे मिडल। गर्दन ऊपर रखते हुए, पीठ सीधी रखते हुए, पैर घुटनों से सीधे रखते हुए 90 डिग्री तक अपर बॉडी को नीचे ले आइए। और धीरे से गर्दन और अपर बॉडी को मिडल में ले आइए। दोनों पैर जॉइंट। जिसको बैलेंस नहीं हो पा रहा है वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना सकते हैं। पादहस्तासन। दोनों हाथों को सामने से ऊपर उठाइए। सांस भरे। सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से धीरे धीरे नीचे। दोनों हाथों के पंजों को पैरों के पंजों के बाजू तक ले जाने की कोशिश करें।
पहले पेट को टच करवाएंगे, फिर धीरे धीरे चेस्ट को, और धीरे धीरे लास्ट में मस्तक को ले जाने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल ही रहेगी, ब्रीदिंग होल्ड नहीं होनी चाहिए। धीरे से पहले गर्दन को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को कान तक ले आइए, दोनों हाथ अपर बॉडी पूरा एक साथ ऊपर, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ रिलीज करें और रिलैक्स। ब्रीदिंग नॉर्मल। एंकल रोटेशन, राइट लेग को ऊपर उठाइए, राइट लेग का पंजा पूरा बाहर की ओर, राइट लेग का पंजा अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर। हाँ, लास्ट टाइम अंदर की ओर। राइट लेग को रिलीज कीजिए, लेफ्ट लेग का पंजा अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, लास्ट अंदर। हाँ, रिलैक्स। 2-3 नॉर्मल सांस लीजिए, नॉर्मल सांस छोड़िए। सूर्य नमस्कार। अभी हम लोगों ने सूर्य नमस्कार, आप लोगों ने, कई सारे लोगों ने सूर्य नमस्कार किए होंगे। अभी आज हमको सूर्य नमस्कार पहले देखना है, फिर करना है। जो लोग चेयर पर कर सकते हैं उन लोगों को चेयर पर करना है। और वेरिएशंस ऑफ इंस्टीट्यूट, जितनी जितनी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज है उन लोगों ने उस पे रिसर्च किया हुआ है। ऐसे डिफरेंट इंस्टीट्यूट ने डिफरेंट सूर्य नमस्कार लिए हैं, तो उनमें से हम आज 2 सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। मैं तीनों के वेरिएशंस आपको दिखा दूंगी। जो हम कर रहे हैं वो सब ऑथेंटिक है, उस पे बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं, जो बहुत ही बेनिफिशियल है। उसके हिसाब से ही इन लोगों ने ये पूरा शेड्यूल, जैसे हम 12 स्टेप्स के सूर्य नमस्कार करते हैं, वैसे गायत्री मंत्र गायत्री परिवार ने प्रज्ञा योग दिया है, उसको भी हम आज उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर एक बार मंत्रों के साथ, मंत्रों के उच्चारण के साथ भी एक बार करेंगे। तो पहले मेरे साथ करना है, करेक्शन के साथ एक राउंड करना है। मेट के आगे के हिस्से में आ जाइए। जो लोग चेयर पर कर रहे हैं उन लोगों को मैं बताती जाऊंगी कि चेयर पर कैसे करने हैं। जैसे हमने उस दिन चेयर पर किए थे, वो पहले चेयर पर बैठ जाए। जो चेयर पर करने वाले हैं वो पहला और दूसरा स्टेप दोनों चेयर पर भी सेम ही आएंगे। मेट के आगे के हिस्से में आ जाइए, दोनों पैर ज्वाइंट रखेंगे। आपको ऐसा लगे कि बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना सकते हैं। धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाइए, शोल्डर लेवल तक ले आने के बाद हथेलियां आकाश की ओर, दोनों हाथों को ऊपर, हाथ नमस्कार मुद्रे मुद्रा में आ जाए। उसके बाद हाथों को चेस्ट तक ले आना है। ये प्रणाम आसन है, फर्स्ट आसन प्रणाम आसन। 2, दोनों हाथों को सामने करना है, दोनों हाथों को पहले कान तक ले जाना है, फिर सांस लेते हुए कमर से पीछे की ओर झुकना है। पर आपके दोनों हाथ गर्दन एक सीधी लाइन में रहेंगे, या तो हाथ पीछे भी नहीं जाएंगे और सिर्फ अकेली गर्दन भी पीछे नहीं जाएगी। सांस लेते हुए पूरा अपर बॉडी, दोनों हाथ और गर्दन एक साथ पीछे। सांस छोड़ते हुए ये हस्त उत्तान आसन है, हाथों को ऊपर की ओर लिया, हस्त उत्तान आसन। 3, सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से पूरा नीचे जाना है, पाद हस्तासन। दोनों हाथों के पंजे पैरों के पंजों के बाजू में, हो सके उतना ही करना है, खींच के किसी को भी नहीं करना है। बैक पेन वालों को, नी पेन वालों को सूर्य नमस्कार नहीं करना है। 4 नंबर, पहले हम लोगों को सेट करना है। जिन लोगों के हाथ पैर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उन लोगों को घुटनों मोड़ देना है। दोनों पैरों की उंगलियां जहां पे आती है वहां पे आपके हाथों की उंगलियां आनी चाहिए।
जिन लोगों से नहीं हो पा रहा है उन लोगों को घुटने मोड़ देने हैं। दोनों हाथों के पंजों को पैरों के पंजों के बाजू में ले आना है। फिर धीरे से लेफ्ट लेग को पीछे ले जाना है। लेफ्ट लेग को पीछे ले जाने के बाद चेक ये करना है आपके राइट लेग की एडी और घुटना एक सीधी लाइन में रहेगा। आपके दोनों हाथों के पंजे पूरी एक सीधी लाइन में रहेंगे। ये हमारा पूरा अश्व संचालन आसन। ये पोस्टर हमारा 4 नंबर का अश्व संचालन आसन है। गर्दन को ऊपर ही रखनी है, पीठ सीधी रहेगी, पीछे का पैर घुटनों से सीधा रहेगा। 5 हाथ नहीं हिलेंगे, सिर्फ राइट लेग को पीछे ले जाना है। अपर बॉडी पूरा सीधा रहेगा, कमर नीचे भी नहीं जाएगी और कमर ज्यादा ऊपर भी नहीं रहेगी। गर्दन हाथ से आगे और पूरा बॉडी एक सीधी लाइन में। दंडासन, दंड जैसा आकार, पूरा बॉडी एक सीधी लाइन में रहेगा। 6 नीज डाउन। अभी जिससे हो रहा है उन लोगों को हाथ का सपोर्ट लेते हुए चेस्ट डाउन और चिन डाउन करनी है। या तो हम फिर बिगिनर्स है तो उसके लिए हम पहले नी नीचे रखेंगे, फिर धीरे से थाइस और पूरा बॉडी चिन को टच करवाना है। 6 अष्टांग नमस्कार आसन। 8 अंग हमारे नीचे टच होते हैं, इसकी वजह से इसको अष्टांग नमस्कार 8 अंग को जमीन पर टच करवाया है। 7 पहले पैरों की उंगलियां बाहर की ओर, दोनों पैर ज्वाइंट रहेंगे, एडिया भी ज्वाइंट रहेगी। दोनों हाथों के पंजे जहां पे थे वहां पे ही रहेंगे लास्ट तक। सांस लेते हुए सिर्फ नाभि तक का बॉडी ऊपर उठाना है। हाथों को ऐसे नहीं रखना है, हाथ पूरे रिलैक्स रहेंगे, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे। हाथ की कोहनियां साइड में फैली हुई नहीं रहेगी, हाथ की कोहनियां सीधी शरीर से नजदीक रहेगी। कोहनियां मुड़ी हुई रहेगी तो चलेगा, पर शोल्डर ऊपर नहीं उठने चाहिए। 8 दोनों पैरों के पंजे पहले अंदर की ओर लेने हैं, पूरे बॉडी को ऊपर उठाना है। हाथ वहां पे ही है, शोल्डर को अंदर की ओर पुश करना है। जितना हो सके उतना अपर बॉडी को नीचे पुश करना है। पर्वतासन, पर्वत जैसा आकार। 9 हिल्स ऊपर उठानी है, लेफ्ट लेग को ही आगे ले आना है। हम पीछे लेफ्ट लेग ले गए थे, आगे भी लेफ्ट लेग को ही ले आना है। यहाँ पे भी यही चेक करना है, जिन लोगों से नहीं आ रहा है या तो यहाँ पे पैर आ रहा है तो पीछे से पैर को पकड़ना है, धीरे से आराम से आगे की ओर ले आना है। आपको ये चेक करना है आपके पैर की एडी और घुटना दोनों सीधी लाइन में रहेंगी। आपके दोनों हाथ आपके पैर की सीधी लाइन में रहेंगे। 10 पादहस्तासन, दोनों हाथों के पंजे पैरों के पंजों के बाजू में। अभी इसमें भी जिन लोगों से हाथ नहीं टच पा हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जितना हो उतना ही करना है, सबकी क्षमताएं अलग अलग रहती है। धीरे से पहले गर्दन को ऊपर लेनी है, दोनों हाथों को कान तक ले जाना है। दोनों हाथ गर्दन और अपर बॉडी एक साथ ऊपर। हसुत्तानासन, सांस लेते हुए पूरा अपर बॉडी पीछे की ओर। और ज्वाल, हाथ नमस्कार मुद्रा में। धीरे से जैसे आए थे वैसे ही दोनों हाथों को पहले हाथों को शोल्डर लेवल तक ले आएंगे, हथेलियां जमीन की ओर और दोनों हाथ रिलैक्स। आंखें बंद, ब्रीदिंग नॉर्मल। 2-3 नॉर्मल सांस लीजिए, नॉर्मल सांस छोड़िए। धीरे से सेकेंड राउंड हम लोग मंत्रों के साथ करेंगे। एक मंत्र 2 बार बोला जाएगा, तो उस मंत्रों को सेम स्टेप्स के साथ ही करना है। एक स्टेप को हमें दो
ओम मित्राय से शुरुआत होगी और ओम भास्कराय से खत्म होगा। तो 2 बार हम लोगों को एक मंत्र 2 बार बोला जाएगा और मंत्रों के साथ हम लोगों को पोस्टर्स करने हैं। पहले चेक ये करना है पोस्टर गलत नहीं करना है, थोड़ा सा कम होगा तो चलेगा, खींच के नहीं करना है। गलत करने का कोई मतलब नहीं है, जो कर रहे हैं वो सही से करे, वो इम्पोर्टेंट है। तो ज्यादा करे उससे अच्छा है थोड़ा करे, पर कम कम से कम जितना करे उतना अच्छे से और बेनिफिट मिले उतना करे। तो एक मंत्रोच्चारण के साथ મંત્રો આમાં થઈ જશે. चल मेट के आगे के हिस्से में आ जाइए। एक कर दिया था पहले से पहले। चल स्टार्ट 1। दोनों हाथों को ऊपर लेते हुए हस्त उत्तानासन। श्री सूर्याय नमः। 4 स्वसंचालनासन। 5 दंडासन। 6 अश्वसंचालनासन। 7 भुजंगासन। 8 पर्वतासन। 9 अश्वसंचालनासन। 10 पादहस्तासन। बंद कर दे बंद कर दे। आंखें बंद। 2-3 नॉर्मल सांस लीजिए, नॉर्मल सांस छोड़िए। ये अभी हमने जो सूर्य नमस्कार किए हैं वो BSY बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर उन लोगों के स्थित, जो उन लोगों ने सूर्य नमस्कार दिए हुए हैं वो वाले सूर्य नमस्कार बिहार स्कूल ऑफ योग के पैटर्न के सूर्य नमस्कार थे। वैसे ही हम आज प्रज्ञा योग गायत्री परिवार वालों ने जो सूर्य नमस्कार की पूरी पैटर्न को प्रज्ञा योग किया गया कहा गया है, उसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। पहले जैसे हम करेक्शंस के साथ किए थे वैसे ही हम लोगों को पहला राउंड ऐसे ही करना है। इसमें मैट के पीछे से शुरुआत करनी है हम लोगों को। तो पहले हम मैट के पीछे के हिस्से में आ जाएंगे। एक एक स्टेप साथ में करेंगे, दोनों पैर ज्वाइन। आपको ऐसा लगे हाँ ये नी पेन वालों को नहीं करना है, या तो मैं जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस देते जाऊं उसके हिसाब से नी पेन वालों को नहीं करना है। बाकी सब लोग ये आसन ये पूरा सीक्वेंस है वो कर सकते हैं। स्टार्ट ताड़ासन। पहले दोनों हाथों को सामने से ऊपर लेना है, दोनों हाथों की हथेलियां सामने की ओर रहेंगी। सांस लेते हुए हिल्स को ऊपर उठाना है। ये हमारा हुआ ताड़ासन, पहला स्टेप ताड़ासन। 2 पादहस्तासन। जिन लोगों को बैक पेन है वो 90 डिग्री तक ही करेंगे। पहले हिल्स को डाउन करना है, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ गर्दन और अपर बॉडी एक साथ ले जाएंगे।
दोनों हाथों को पंजे तक ले जाने की कोशिश करेंगे। मस्तक को घुटने की ओर जितना हो सके उतना क्षमता के अनुसार करना है। पादहस्तासन, त्रिवज्रासन। उसके लिए पहले हमको गर्दन ऊपर उठानी है। ये नी पेन वालों को नहीं करना है। पहले घुटने को मोड़ते हुए घुटने नीचे रखेंगे, पैरों की उंगलियां बाहर की ओर, पैरों की उंगलियां और एड़ियां ज्वाइंट रहेगी। और वज्रासन में हमें बैठना है ऊपर की ओर। हमारी एड़ी पर हमें हिप्स रखने हैं। एड़ियां और पंजे एक दूसरे से जुड़े हुए ही रहेंगे। फोर उष्ट्रासन के लिए जिन लोगों से पूर्ण उष्ट्रासन हो रहा है, मैं पहले पूर्ण उष्ट्रासन करके दिखाती हूँ, उसके बाद हम अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है। राइट हैंड को ऊपर उठाना है, फिर पीछे ले जाना है एडी पर। लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाना है, फिर ले जाना है पीछे एडी पर। कमर नीचे नहीं रहेगी, कमर को आगे की ओर पुश करना है। शोल्डर गर्दन रिलैक्स। ये पूर्ण उष्ट्रासन हुआ। इसमें से वापस भी ऐसे ही आएंगे। पहले लेफ्ट लेग को ऊपर उठा के आएंगे, राइट हैंड को ऊपर उठा के आएंगे। जिनसे ये पूर्ण उष्ट्रासन नहीं हो रहा है उन लोगों को अर्ध उष्ट्रासन। दोनों हाथों को कमर से पीछे, उंगलियां पीछे की ओर, पूरी बैक कवर करनी है। पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है, शोल्डर को बाहर की ओर। और सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे। जिन लोगों से पूर्ण उष्ट्रासन हो रहा है वो पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। जिन लोगों से अर्ध उष्ट्रासन हो रहा है वो अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। धीरे से उसमें से वापस आएंगे। पहले दोनों हाथों को फिंगर्स लॉक करानी है, पीछे की ओर खींचने हैं। फिर दोनों पैर ज्वाइंट, धीरे धीरे हिप्स को एडी पर रखने हैं। सांस छोड़ते हुए पहले पेट को अंदर की ओर, धीरे धीरे चेस्ट को, मस्तक को और हाथों को पीछे से ऊपर उठाना है। ये हमारा हुआ योग मुद्रा आसन। धीरे से गर्दन को ऊपर, दोनों हाथों को पहले नीचे ले आना है, पीछे से हाथों को आगे ले आए। दोनों हाथ, गर्दन और अपर बॉडी एक साथ ऊपर। अर्ध ताड़ासन। सांस लेते हुए, छोड़ते हुए, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है पूरे अपर बॉडी को। शशांक आसन। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए पहले पेट को नीचे ले आना है, फिर धीरे धीरे चेस्ट को, हाथों को और मस्तक को, हाथों को जितना हो सके उतना आगे ले आना है। आपके हिप्स आपकी एडी पर ही रहेंगे। धीरे से मस्तक को नीचे, शशांक आसन। इसमें से ही भुजंग आसन में जाना है, पर हमारे हाथ जहां पे है वहां पे शोल्डर लेवल तक का डिस्टेंस बना ले। हाथों को हिलाना नहीं है, पैरों को हिलाना नहीं है। पहले एक बार ऐसा हो तो देख लीजिए। सिर्फ अपर बॉडी को ऊपर उठाना है और नाभि तक का पूरा बॉडी नीचे आएगा। भुजंग आसन। पैरों को एडिया ज्वाइंट रहेगी और धीरे धीरे अपर बॉडी को ऊपर की ओर, भुजंग जैसा, सांप जैसा आकार बनाना है, भुजंग आसन। तिर्यक भुजंगासन के लिए पहले दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए पहले लेफ्ट साइड अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है। शोल्डर रिलैक्स ही रहेंगे। सांस लेते हुए मिडल, सांस छोड़ते हुए पूरा अपर बॉडी ट्विस्ट करें राइट साइड। शोल्डर रिलैक्स ही रहेंगे। धीरे से गर्दन को, अपर बॉडी को मिडल में ले आइए। फिर से एक बार भुजंग आसन। पीछे से दोनों पैर ज्वाइंट, एडिया ज्वाइंट रहेंगी, शोल्डर रिलैक्स। शशांक आसन में यहां से ही जाना है, हाथ वहां पे ही है। पूरे अपर बॉडी को, थाइस को ऊपर उठाना है। सांस छोड़ते हुए पूरा शशांक आसन। अर्ध ताड़ासन। पहले गर्दन को ऊपर उठाना है, दोनों हाथों को कान तक, दोनों हाथ अपर बॉडी और पूरा, दोनों हाथ गर्दन और अपर बॉडी एक साथ ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है। ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे।
दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, उत्कट आसन। पीछे से पहले दोनों पैरों की एड़ियां अंदर की ओर लेनी है, नजर को एक जगह पर स्थिर करना है और धीरे धीरे दोनों घुटने ऊपर की ओर उठाने हैं। बैलेंसिंग पोज। इसमें से ही पादहस्तासन में दोनों हाथों के पंजों को पैरों के पंजों के बाजू में ले जाना है। धीरे धीरे पहले घुटने सीधे करते जाने हैं और मस्तक को घुटने की ओर। ताड़ासन। पहले गर्दन को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को कान तक ले आएंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ गर्दन और अपर बॉडी ऊपर। सांस लेते हुए हिल्स को ऊपर उठाएंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल। फिर से एक बार सांस भरे, सांस छोड़ते हुए ओमकार के साथ नीचे आएंगे। दोनों हाथों को नीचे लेते जाएंगे, मुट्ठियां बंद करेंगे, प्राप्त हुई ऊर्जा को धीरे धीरे शोल्डर लेवल तक ले आएंगे, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में स्प्रेड कर देंगे। ओम के उच्चारण के साथ धीरे धीरे नीचे आएंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल, आंखें बंद। 2-3 नॉर्मल सांस लीजिए, नॉर्मल सांस छोड़िए। प्रज्ञा योग गायत्री परिवार वालों ने दिया है, ये पूरा साइंटिफिक है। ये बच्चों से लेकर बड़े तक सभी लोग कर सकते हैं। सिर्फ इसमें नी पेन वालों को वज्रासन और शशांक आसन नहीं करना है, उत्कटासन शशांकासन नहीं करना है। जो लोग नी पेन वाले हैं उन लोगों के लिए अलग से प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि उन लोगों को वज्रासन नहीं करना है, उत्कट आसन नहीं करना है, शशांकासन नहीं करना है। उसमें सिर्फ उन लोगों को घुटने के नीचे मैट थोड़ी फोल्ड करके या तो कोई ऐसा नैपकिन वगैरह है वो रख के खड़े घुटने पर खड़े होकर कर सकते हैं। इसका ही हम सेकंड राउंड ब्रीदिंग के साथ करना है। हर एक आसन में जब हम प्रैक्टिसनर हो जाते हैं, इसके अभ्यास अच्छे से करने से लगते हैं, तो एक आसन में सांस लेनी है, एक आसन में सांस छोड़नी है, पूरी सांसों की टेक्निक के साथ ही पूरा जाएगा। ब्रीदिंग के साथ जैसे हम वो वाले सूर्य नमस्कार जो नॉर्मल बीएसवाई के सूर्य नमस्कार है वो करते हैं, ऐसे ही इसमें ब्रीदिंग के साथ एक आसन में सांस ली तो दूसरे आसन में सांस छूट जाएगी। बैलेंसिंग पोस्टर है तो उसमें ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी। चलो सेकेंड राउंड स्टार्ट करते हैं। ब्रीदिंग के साथ सांस लेते हुए दोनों हाथ अपर बॉडी एक साथ ऊपर, ताड़ासन, हिल्स को ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन, दोनों हाथ अपर बॉडी पूरा नीचे, दोनों हाथों के पंजे पैरों के पंजों के बाजू तक ले जाइए, मस्तक घुटने की ओर। 3 इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर और वज्रासन में आ जाइए। 4 उष्ट्रासन, घुटने पर खड़े हो जाए, दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस। सांस लेते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे पीछे ले जाना है। जो लोग पूर्ण उष्ट्रासन नहीं कर सकते उन लोगों को अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करना है। धीरे से वापस आएंगे, घुटने ज्वाइन, दोनों हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए योग मुद्रा। सांस लेते हुए धीरे से गर्दन ऊपर, दोनों हाथों को सामने से ऊपर लेते हुए अर्ध ताड़ासन। सांस छोड़ते हुए शशांक आसन, पहले पेट को नीचे ले जाना है। धीरे धीरे हाथ और मस्तक, हाथों को जितना हो सके उतना आगे की ओर खींच के रखना है। दोनों हाथों के बीच शोल्डर लेवल तक का डिस्टेंस। सांस लेते हुए भुजंगासन, पूरे बॉडी को आगे ले आएंगे, शोल्डर रिलैक्स, पीछे से दोनों पैर जॉइन। तिर्यक भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्टिंग, दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस। सांस लेते हुए मिडल, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड राइट साइड, मिडल, दोनों पैर जॉइंट। सांस छोड़ते हुए शशांक आसन।
सांस लेते हुए अर्ध ताड़ासन, दोनों हाथ अपर बॉडी को ऊपर। उत्कट आसन के लिए जब बैलेंसिंग पोस्टर करते हैं तो ब्रीदिंग नॉर्मल रखेंगे। हाथ नमस्कार मुद्रा में, पीछे से दोनों पैर ज्वाइन, घुटने एक साथ ऊपर उठाएंगे, नजर को एक जगह पर स्थिर करेंगे। पादहस्तासन, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे, पैरों के पंजों के बाजू में धीरे धीरे मस्तक घुटने की ओर, घुटने सीधे हो जाएंगे। लास्ट ताड़ासन, सामने से दोनों हाथ, गर्दन और अपर बॉडी एक साथ ऊपर। सांस लेते हुए पूरे अपर बॉडी को, हिल्स को ऊपर उठाइए। सांस छोड़ते हुए ओम चेंटिंग के साथ नीचे, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए प्राप्त हुई ऊर्जा को पूरे शरीर पर फैलाएं। और रिलैक्स, आंखें बंद, ब्रीदिंग नॉर्मल। 2-3 नॉर्मल सांस लीजिए, नॉर्मल सांस छोड़िए। जैसे जैसे हम प्रैक्टिशनर हो जाते हैं वैसे हम विन्यासा फ्लो, आ, जो ओंकार का है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के सूर्य नमस्कार है, वो सब प्रैक्टिशनर लोग कर सकते हैं। वो थोड़ा सा एडवांस, ये जब हमने कर रहे हैं तो ये सभी लोग कर सकते हैं। जो नए नए स्टार्ट कर रहे हैं वो सभी लोग ये दोनों सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। पतंजलि योगपीठ, BSY और प्रज्ञा योग, ये इजी सूर्य नमस्कार है जो हम लोग आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा कम करेंगे तो चलेगा, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद हो जाएंगे। धीरे से अपनी जगह पर शवासन में आना है, रिलैक्सेशन करेंगे। पहले बैठ जाएंगे, फिर धीरे धीरे जगह पर शवासन में आ जाएंगे। दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस, दोनों हाथ शरीर से थोड़े दूर, हथेलियां आकाश की ओर। आंखें कोमलता से बंद। पूरे शरीर को ढीला छोड़िए। रिलैक्सेशन जो हमने सूर्य नमस्कार के बाद शरीर के जो जो अंगों को स्ट्रेच किया है, खिंचाव दिया है, उन सभी को रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल तक फैलाइए। हथेलियां जमीन की ओर। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए। दोनों पैर ज्वाइंट रहेंगे, एडिया घुटने ज्वाइंट रहेंगे। कटी वक्रासन, सांस भरे, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर एक साथ, लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। आंखें बंद, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। दोनों पैरों के पंजे एक दूसरे के पंजे के ऊपर आएंगे, घुटने एक दूसरे घुटने पर आएंगे। लोअर बैक से पूरा ट्विस्ट होना है। हथेलियां जमीन की ओर। पैर और गर्दन को मिडल में ले आइए। अपोजिट साइड, दोनों पैर एक साथ, राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। शरीर को ढीला छोड़िए, ब्रीदिंग नॉर्मल, आंखें बंद। धीरे से पैर और गर्दन को मिडल में ले आइए।
दोनों हाथ शरीर से नजदीक पवन मुक्त आसन के लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़े हुए ही पेट तक ले आइए। दोनों हाथों से दोनों घुटने पकड़ ले, इंटरलॉक करवा लीजिए हाथों को। आपके घुटने पेट तक, चेस्ट तक आएंगे। जिन लोगों को बैक पेन है उन लोगों को गर्दन ऊपर नहीं उठानी है। जिन लोगों को नी पेन है उन लोगों को हाथों को घुटने के नीचे से पकड़ने हैं। जिन लोगों को नी पेन नहीं है वो लोग ऊपर से ही पकड़ेंगे। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए शोल्डर, गर्दन, पूरे अपर बॉडी को थोड़ा ऊपर उठाना है, मस्तक को घुटने की ओर। धीरे से गर्दन रिलीज करेंगे। दोनों हाथ रिलीज। दोनों पैरों को ऊपर 90 डिग्री तक ले जाइए, 60 डिग्री तक डाउन, 30 डिग्री हैंड डाउन, रिलैक्स। शवासन, पवन मुक्तासन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया है। जिसको एसिडिक प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो रही है उन लोगों के लिए आसन बहुत ही बेनिफिशियल है। सेतु बंधासन, ब्रिज पोज। दोनों हाथ शरीर से नजदीक, हथेलियां जमीन की ओर। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़िए। दोनों पैरों के एडिया आपके हिप्स तक ले आने की कोशिश करें। दोनों पैरों के बीच, पंजों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस। सांस लेते हुए पेट और कमर को ऊपर उठाना है। आपकी शोल्डर, गर्दन नीचे ही रहेगी। कमर को, पेट को एक साथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। सांस लेते हुए ऊपर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। लास्ट सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए कमर को नीचे। दोनों हाथ रिलीज, पैर रिलैक्स। शवासन, हथेलियां आकाश की ओर। दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस। आंखों को बंद ही रखेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। शरीर पूरा रिलैक्स। धीरे से लेफ्ट साइड करवट लेंगे। धीरे धीरे अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। कोई भी एक ध्यानात्मक आसन में आंखें बंद। अनुलोम विलोम और भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। पहले अनुलोम विलोम जैसे मिश्रा जी ने सिखाया था, पहली राइट हैंड की फर्स्ट टू फिंगर्स बैंड करनी है। हमें यूज करना है अंगूठे और तीसरी उंगली का। लेफ्ट साइड से सांस लेनी है, राइट साइड से सांस छोड़नी है। राइट साइड से ही सांस लेनी है और लेफ्ट साइड से सांस छोड़नी है। ब्रीदिंग हम अब जैसे अभी ब्रीदिंग चल रही है वैसे ही ब्रीदिंग में लेना है। सांस को खींचनी नहीं है, फोर्सफुली छोड़ना नहीं है। अभी के लिए कोई भी कुंभक होल्ड करना नहीं है। सिर्फ लेफ्ट से सांस लेनी है, राइट से सांस छोड़नी है। राइट से ही सांस लेनी है और लेफ्ट से सांस छोड़नी है। अनुलोम विलोम हर बार लेफ्ट से ही स्टार्ट होगा, लेफ्ट से ही खत्म होगा।
सिर्फ हम लोगों को 3 राउंड अनुलोम विलोम के करने हैं। कमर गर्दन सीधी। राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स बैंड करें। राइट नोस्ट्रल को बंद कीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस भरे। राइट नोस्ट्रल से सांस को छोड़िए। राइट नोस्ट्रल से ही सांस भरे और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को छोड़िए। कंटिन्यू करने के लिए लेफ्ट से ही फिर से सांस भरेंगे। राइट से छोड़ेंगे। राइट से ही सांस भरे और लेफ्ट से सांस छोड़िए। लास्ट राउंड लेफ्ट से इनहेल। राइट से एक्सहेल। राइट से ही इनहेल और लेफ्ट साइड से पूरी सांस बाहर निकालते हुए शांत बैठेंगे। 1 2 नॉर्मल सांस लीजिए, नॉर्मल सांस छोड़िए। 5 राउंड भ्रामरी उच्चारण। दोनों हाथों के अंगूठों से कानों को लॉक करवाना है। हथेलियों को उंगलियों को आंखों पर रखना है। कानों को बंद करके लॉक करके रखना है अंगूठों से। दोनों नोस्ट्रल से सांस भरेंगे और सांस बाहर निकालते हुए कंठ से भ्रमर जैसा आवाज निकाले है, हमिंग साउंड। जैसे हम किंग ऐसा बोलते हैं वैसी आवाज यहाँ से गले से निकलनी चाहिए। दोनों हाथों से कानों को लॉक करवा दीजिए, उंगलियां आंखों पर। सांस भरे। हम्म, सांस भरे। हम्म, सांस भरे। लास्ट राउंड सांस भरे। आंखों को बंद ही रखेंगे। हाथों को रिलीज करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। श्वास प्रश्वास में हुए बदलाव को, हमिंग साउंड के कंपन को, पूरे शरीर में ध्वनि का स्पंदन। शरीर श्वास प्रश्वास संपूर्ण शांत रिलैक्स हो चुके हैं। उसी शांति का अनुभव, उसी शांति का आनंद ले। आंखों को बंद ही रखेंगे।
पूरे सेशन के दौरान जो अभ्यास किया है उन सभी को बंद आंखों से ही, मानसिक आंखों से याद करने का प्रयास करेंगे। सभी के बाद शरीर में, श्वास में हुए परिवर्तन को महसूस करें। इस शांति का आनंद, इस शांति का अनुभव करें। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरे। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति पाठ। सर्वे भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें। प्राप्त हुई सात्विक ऊर्जा को पूरे शरीर पर, दोनों हाथों के शोल्डर, पूरे दोनों हाथ, पेट, चेस्ट, बैक साइड, आपके हिप्स, घुटने, काफ मसल्स, पैरों के तलवों तक प्राप्त हुई सात्विक ऊर्जा को फैलाइए। फिर से दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें। आंखों पर, चेहरे पर धीरे से हथेली में देखते हुए स्माइल के साथ आंखों को खोलेंगे। धन्यवाद। हरिओम सभी को। ओवर टू मिश्रा जी। हरिओम। थैंक यू। सभी को मेरा प्रणाम। इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी एवं प्रोजेक्टाइल के जॉइंट वेंचर में ये आयोजित योग का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से अभी तक चला। कल हमारा ये लास्ट सेशन होगा, तो मैं चाहूँगा कि आप सब योग को जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं और स्वस्थ रहने की दिशा में आप सब एक कदम आगे बढ़ाएं। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि 21 जून को विश्व योग दिवस, जहां पूरा विश्व एक साथ योग का अभ्यास करेगा और दुनिया के करोड़ों लोग इस योग को आत्मसात करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप सब भी 21 जून को योग अवश्य करें और योग को न केवल शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, अपितु इसे सर्वांगीण दृष्टिकोण से, आप इसे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं और इसके अभूतपूर्व लाभ हैं, जैसा कि आपने इतने दिनों में महसूस किया होगा। यदि हम इसको नियमित रूप से करते हैं तो इससे आप बहुत ही लाभान्वित होंगे। आज का दिन आप सबके लिए शुभ और मंगलमय हो। इस शुभभावना के साथ आज का सेशन हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। शुभा मैडम। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सबको। और थैंक यू इंडियन मेनोपॉज सोसाइटी, डॉक्टर अनीता, डॉक्टर रागिनी, टीम, डॉक्टर रत्ना
for taking this initiative and Dr. Beenal for coordinating. And thanks everyone for joining. तो जैसे मिश्रा जी ने हमें समझाया कि योग स्वस्थ जीवन जीने की कला विज्ञान है, जुड़ना और जोड़ना, दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ इट। और ये खाली फिजिकल पोजेस के लिए नहीं है, बट इट आल्सो इन्वॉल्व्स आवर कंसंट्रेशन, डीप ब्रीदिंग, और जो आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, ये कितनी कामनेस और वेल बीइंग लाता है हमारी जिंदगी में। और मेनोपॉज में तो ये मेनोपॉजल सिम्टम्स के लिए इतना फायदेमंद है, वो सिर्फ एक्सपीरियंस करके ही हम कर सकते हैं, ये बोल के नहीं है। और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ये प्रोजेक्ट लाइफ के पूरे जो टीम है, और ये जो हमारी छोटी सी इंस्ट्रक्टर हैं, इन्होंने कितने अच्छे तरीके से ये पोजेस किए, हम तो मंत्र मुग्ध हो गए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी स्टेज पे योग स्टार्ट किया जाए ऐसा अच्छा है, लेकिन जितना जल्दी किया जाए, अगर यंग से किया जाए, तो ये तो फिर आगे जाके बहुत ही फायदेमंद होगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इट। और मुझे पता है कि इस आपको सबको पता है, इस बार 10 साल पूरे होने जा रहे हैं मोदी जी के योगा के। एंड वी रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर मेनोपॉज सोसाइटी टू ज्वाइन ईच एंड एवरी वन ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, दैट इज 21st। थैंक यू वेरी मच। Thank you, dear Sudha, for joining and gracing the event. And thank you, Mishra ji and Rushita. Everyone is enjoying a lot, and it was really very, very informative. And Rushita is doing demonstration in such a way that those who are not knowing anything, they can also do it. So thanks a lot again and again. या थैंक यू अनीता मैम एंड सुधा मैम। एंड आपने सही कहा कि योग में किसी की कंपैरिजन नहीं करनी होती है, अपनी लिमिटेशन समझ के, और हर एक को अपने तरीके से, जैसे ऋषि तनिष जी ने बताया कि किसी को कमर दर्द है, किसी को घुटने का दर्द है, तो अपनी लिमिटेशन को समझ के उस हिसाब से योग को फॉलो करें। एंड थैंक यू, आपने सारे वेरिएशंस भी बताए, तो जिस तरह का आपका योगाभ्यास है उस तरह के आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सबको बहुत सुप्रभात, और दिन आपका अच्छा रहे, और सूर्य नमस्कार आपका अभिन्न अंग बने रोज दिन की शुरुआत के लिए। नमस्कार, और कल हम फिर से जुड़ेंगे। नमस्कार। एंड शैली जी, आई वुड लाइक यू टू कंक्लूड, रिक्वेस्ट यू। शैली जी, आमी जी जो हैं उधर जुड़ी हुई। Oh, yes, it was really a एमी जी और एमी जी और बीनल जी, आप दोनों के पोस्टर्स देख के hats off. Thank you, ma'am. And it was really a wonderful session. And मुझे सुधा मैम ने जैसे बताया वो ही लगा कि लगातार 9 days हमने किए। हमारे जो सभी ट्रेनर थे वो they are all are very young, but they are so professional and so perfect in teaching us. Hats off to all of them. And thank you everyone for joining. कल फिर से मिलेंगे sharp 8 o'clock. Tomorrow will be the last day. Thank you once again. Thank you.